हम पढ़ेंगे आइज़ाया 50 चैप्टर 51 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से। आइए पवित्र आत्मा हमें इन वचनों की बातों का भेद जो है वो हमें खोल कर दीजिए। आपके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता है पवित्र आत्मा, आप नहीं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसके लिए हमें व्यर्थ जाने मत दीजिए, हमारी समझ बुद्धि ज्ञान को खोलिए और हम ये वचनों के भेद लेकर परमेश्वर के लिए सिद्धता के रास्ते चल सके। नासरी यीशु के नाम में हमें फिट एंड फिक्स करने के लिए, ईश्वरीय ऑर्डरनेस में आने के लिए हमें वचनों के भेद समझ में आने दीजिए। हम विनती करते हैं नासरी यीशु के नाम में, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। चैप्टर 50 आइज़ाया चैप्टर 50 पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर पढ़ेंगे हम हिंदी में BSI बाइबल में से। Christ shews the cause of the Jews' dereliction. Exaltation to trust in God and not in human resources. First verse से पढ़ेंगे, Thus saith the Lord, here is the bill of your mother's divorcement, whom I have put away, or which of my creditors is it to whom I have sold you? Behold, for your iniquities have ye sold yourselves, and for your transgressions is your mother put away. Wherefore, when I came, was there no man? When I called, was there none to answer? Is my hand shortened at all, that it cannot redeem? Or have I no power to deliver? Behold, at my rebuke I dry up the sea, I make the rivers a wilderness, their fish stinketh, because there is no water, and dieth for thirst. I clothe the heavens with blackness, and I make sackcloth their covering. The Lord God hath given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary. He wakeneth morning by morning, he wakeneth mine ear to hear as the learned. The Lord God hath opened mine ear, and I was not rebellious, neither turned away back. I gave my back to the smiters, and my cheeks to them that plucked off the hair. I hid not my face from shame and spitting, for the Lord God will help me. Therefore shall I not be confounded. Therefore have I set my face like a flint, and I know that I shall not be ashamed. He is near that justifieth me. Who will contend with me? Let us stand together. Who is mine adversary? Let him come near to me. Behold, the Lord God will help me. Who is he that shall condemn me? Lo, they all shall wax old as a garment. The moth shall eat them up. Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness and hath no light? Let him trust in the name of the Lord and stay upon his guard. Behold, all ye that kindle a fire, that compass yourselves about with sparks, walk in the light of your fire, and in the sparks that ye have kindled, this shall ye have of mine hand, ye shall lie down in sorrow. Chapter 51. The righteous exalted after the pattern of Abraham to trust in Christ, certainty of his salvation. First verse से पढ़ेंगे, Hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that seek the Lord, look unto the rock whence ye are hewn, and to the hole of the pit whence ye are digged. Look unto Abraham your father, and unto Sarah that bare you, for I called
him alone, and blessed him and increased him. For the Lord shall comfort Zion, he will comfort all her waste places, and he will make her wilderness like Eden, and her desert like the garden of the Lord. Joy and gladness shall be found therein, thanksgiving and the voice of melody. ये हमारे साथ अभी हो रहा है. ओके, हम जब पवित्र आत्मा में भर चुके लोग हैं, परमेश्वर के नए जन्म पाए हुए लोग हैं, हमारे साथ ये हो रहा है. ओके, 4th verse से, hearken unto me, my people, and give ear unto me, O my nation, for a law shall proceed from me, and I will make my judgment to rest for a light of the people. My righteousness is near, my salvation is gone forth, and mine arms shall judge the people. The isles shall wait upon me, and on mine arm shall they trust. Hallelujah. Wow, wonderful. Lift up your eyes to the heavens, and look upon the earth beneath. For the heavens shall vanish away like smoke, and the earth shall wax old like a garment, and they that dwell therein shall die in like manner. But my salvation shall be forever, and my righteousness shall not be abolished. Hearken unto me, ye that know righteousness, the people in whose heart is my law. Fear ye not the reproach of men, neither be ye afraid of their revilings. देखिए क्या लिखा है, हमारे कोई भी विरोधियों से हमको कोई मतलब नहीं लेना है दिमाग के अंदर. ओके, 8 वचन से आगे, for the moth shall eat them up like a garment, and the worm shall eat them like wool. But my righteousness shall be forever, and my salvation from generation to generation. Awake, awake, put on strength, O arm of the Lord, awake, as in the ancient days, in the generations of old. And thou not it that hath out Rahab, that hath cut Rahab and wounded the dragon? Art thou not it which hath dried the sea, the waters of the great deep, that hath made the depths of the sea a way for the ransomed to pass over? Therefore the redeemed of the Lord shall return and come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their head. They shall obtain gladness and joy, and sorrow and mourning shall flee away. Hallelujah. ये हमारा पोर्शन है. Amen. मुश्किल समयों को आप ये वचन सुनाना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पोर्शन है. जो मुश्किल समय है वो हमारा पोर्शन नहीं है. Amen. उनको आप बयान नहीं करना है, आपने 11 वचन को बयान करना है यहाँ जो दिया है. 12 वचन देखिए क्या है. 12 verse, I, even I am he that comforteth you. Who art thou that thou shouldest be afraid of a man that shall die, and of the son of man which shall be made as grass? And forgettest the Lord thy Maker, that hath stretched forth the heavens, and laid the foundations of the earth, and hast feared continually every day, because of the fury of the oppressor, as if he were ready to destroy. And where is the fury of the oppressor? The captive exile hasteneth that he may be loosed, and that he should not die in the pit, nor that his bread should fail. But I am the Lord thy God, that divided the sea, whose waves rolled. The Lord of hosts is his name. And I have put my words in thy mouth, and I have covered thee in the shadow of mine hand, that I may plant the heavens, and lay the foundations of the earth, and say unto Zion, Thou art my people. Awake, awake, stand up, O Jerusalem, which hast drunk at the hand of the Lord the cup of his fury. Thou hast drunken the dregs of the cup of trembling, and wrung them out. There is none to guide her among all the sons whom she hath brought forth.
neither is there any that taketh her by the hand of all the sons that she hath brought up. These two things are come unto thee. Who shall be sorry for thee? Desolation and destruction, and the famine, and the sword. By whom shall I comfort thee? Thy sons have fainted. They lie at the head of all the streets. As a wild bull in a net, they are full of the fury of the Lord, the rebuke of thy God. ये हालत है जो हमको सताते हैं उनकी। ओके, जब मैं हिंदी में पढ़ूंगी तब ध्यान से सुनिए। उनकी आप जानते नहीं हो, उनके बारे में सीक्रेट्स परमेश्वर के बाइबल में लिखे हुए आप नहीं जानते हैं, इसके लिए आपको उनकी बातों का सामना करना बनता नहीं है, क्योंकि आप उनको सच मानते हैं। ओके, क्योंकि आपको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मतलब वो हाँ ये एकदम मतलब कुछ तो है, वो लोग कुछ तो है। नहीं, कुछ नहीं है वो लोग। ओके, वो सिंपली एक मूर्ख है, मूर्ख। ओके, 21 वर्स क्या है? Therefore hear now this, thou afflicted and drunken, but not with wine. 22 verse. Thus saith the Lord, thus saith thy Lord, the Lord and thy God that pleadeth the cause of his people. Behold, I have taken out of thine hand the cup of trembling, even the dregs of the cup of my fury. Thou shalt no more drink it again, but I will put it into the hand of them that afflict thee, which I have said to thy soul, bow down, that we may go over. And thou hast laid thy body as the ground, and as the street to them that went over. हालेलुया। ये है हमारी हालत। हमको वो लोग दबोच कर झुका के रखना चाहते हैं, और हम उनके सामने कोई ज्यादती नहीं करते हैं, हम अपने शरीर को शांत रखते हैं, है ना। तो परमेश्वर कहता है डोंट वरी, अब जो तूने सहन किया है वही प्याला उठाकर अब मैं उनके जीवन में उंडेलने जा रहा हूँ। क्या जानते हैं आप ये परमेश्वर करने जा रहा है? अगर आप जानते तो आपके शरीर को आप परेशान नहीं करते, आपके शरीर में आप शांत रहते और परमेश्वर की ओर देखते। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। आमेन। आप प्रार्थना में बने रहिए, आप उपवास में बने रहिए। आपको जो बनता है, जो समय में बनता है, जिस समय में बनता है, आप करते जाइए। और परमेश्वर क्या करने वाला है वो भी आप जान के रखिए। परमेश्वर ये करने वाला है जो आपके ऊपर उन्होंने दबाव रखे हैं, पलट कर उनके ऊपर परमेश्वर उनके ऊपर वो दबाव को लेकर जा रहा है। आमेन। आप अगर ये उनके बारे में समझ जाए तो आप उनके शरीर की अवस्थाओं के ऊपर अपने माइंड को नहीं लगाएंगे कि आप क्या करें क्या करें क्या करें। कुछ मत कीजिए, आप प्रभु में जो मिलता है समय आप चलते जाइए आगे। आमेन। यशायाह 50 अध्याय और 51 अध्याय हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है जिसे मैंने उसे त्याग दे समय दिया था, या मैंने किस व्यापारी के हाथ तुम्हें बेचा? यहोवा यूं कहता है, सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई न बोला? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ। हालेलुया। मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ। उनकी मछलियाँ जल बिना मर जाती और बसाती है। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूँ। ओके, तो ये क्यों बोला परमेश्वर ने? क्योंकि आकाश मंडल में शक्तियां हैं और मनुष्य उसका इस्तेमाल करता है। मछलियों के बारे में क्यों बोला परमेश्वर ने? क्योंकि मछलियों में से भी, जल में से भी शैतान के शक्तियों को यूज किया जाता है। ओके, समुद्र के बारे में क्यों बोला? धमकी देने के बारे में। वो सुखा देगा परमेश्वर, क्योंकि समुद्र के अंदर की शक्तियां लोग इस्तेमाल करते हैं।
महानदों को रेगिस्तान बना देगा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ओशंस, महानदी यानी ओशंस में से भी परमेश्वर देखता है कि लोग उसके पावर्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ओशंस पावर रखता है, समुद्र पावर्स रखता है, ओके, और मछलियाँ पावर्स रखती है, आकाश पावर्स रखता है, ओके। और इस प्रकार से मनुष्य जानता है, जानकारी शैतान ने उनको दिया है कि ये सब कुछ में वॉयलेंस पावर है, प्रॉस्पेरिटी पावर्स है, ब्यूटी पावर्स है, प्राउड फील कराएंगे ऐसे पावर्स है। ये जानकारियाँ शैतान ने दिया। आपको पता है हवा को जानकारी कैसे दिया था उसने? कि परमेश्वर जो कह रहा है वैसा सच में थोड़ी ही तो मरने वाली है। ऐसा ही इन लोगों को शैतान ने कहा है, ओके, कि तुम जो समझते हो वैसा थोड़ी है, ओके। तो इस प्रकार से लोगों ने उसका मान लिया, हवा ने भी उसका, शैतान का मान लिया, देखा जाके, परखा जाके, चेक किया और उसके बुद्धि को समझ में आया जैसा शैतान कह रहा था बिल्कुल वैसा ही है वो, ओके। तो लोगों ने भी क्या किया? चख के देखा, पहचाना, परखा, जाकर खुद अनुभव किया। क्या सचमुच समुद्र में पावर है क्या? क्या सचमुच मछलियों में पावर है क्या? क्या सचमुच ओशंस के अंदर, महानदों के अंदर पावर है क्या? क्या सचमुच आकाश में पावर है क्या? ओके, उन्होंने जाके चख के देखा, इस्तेमाल करके देखा और ठोक परख कर फिर उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये पावर इस्तेमाल होता है, ओके, काम कर जाता है ये पावर्स। ये इस तरह से शैतान ने उनको पावर्स के पीछे लगा दिया। और इसके लिए परमेश्वर ये बात हमको बताता है। जब आप बोलते हैं ना मुझे वॉरफेयर के बारे में सीखना है, ये टीचिंग है वॉरफेयर्स के, ओके। इसके लिए परमेश्वर कहता है मैं समुद्र को सुखाने की ताकत रखता हूँ, यानी तुम लोगों को जो पावर देता है उसको पावरलेस बनाने का काम परमेश्वर कर सकता है, ओके। जब आपको मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ये काम कर सकता है तो आपने भी बोलना है नासरी यीशु के नाम से समुद्र सूख जा, महानद रेगिस्तान बन जा, ओके। और धमकी देना है नासरी यीशु के नाम से, मछलियाँ जल बिना मर जाए यीशु के नाम से, ओके, और बसाने लगे, ओके। आकाश टाट की तरह ओढ़ना बन जाए और काला कपड़ा पहन के शोक की तरह, मानो शोक का काला कपड़ा पहनते वैसा हो जाए नासरी यीशु के नाम से। आप जब ऐसे बोलेंगे उसके जगह जगह जो उनकी शक्तियों का ठिकाना है, घर है, वो सब वहाँ पर वैसा ही होगा। इसके लिए वचन लिखा है जो तुम पृथ्वी के ऊपर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, जो पृथ्वी के ऊपर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। तो आपने क्या खोलना है? जो परमेश्वर का है वो बातें खोलनी है। क्या क्या है देखिए परमेश्वर का। प्रभु के दास का आज्ञा पालन, 4 वचन से आगे, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। आमीन। तो आप थके हुए लोगों के लिए आप परमेश्वर में आए हो, ठीक है। ये आपकी सेवकाई है। आपके शरीर से आपने क्या करना है? आप वो सेवा करना है जो परमेश्वर का वचन थके हुओं को देना है। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। तो हम विरोध नहीं कर रहे और ना ही हम पीछे हट रहे, लेकिन हमको पीछे हटाने वाले दुष्ट जगत के लोगों के अंगों में से काम किए जा रहे हैं, है ना, उनके अंगों में से। क्योंकि आपने कुलोसियों की पत्री में पढ़ा कि अंगों में से दुष्टता किया जाता था, है ना, तो वो अंगों में से इस्तेमाल किए जा रहे। तो परमेश्वर कहता है कि उनके अंगों में ये पावर्स है, समुद्र की पावर, ओके, मछलियों की पावर, ओशंस की पावर, महानदों की, आकाश की पावर, ये सब उनके अंगों में उन्होंने बिठा के रखे हैं। पावर्स उनके साथ लेके चल रहे। अगर मैंने उस पावर का जड़ ही सुखा दिया, ओके, वो पावर्स के पानी में से अगर वो पावर्स लेके चल रहे, मछलियों में से अगर वो पावर्स लेके चल रहे, आकाश में से अगर वो पावर्स लेके चल रहे, अगर मैं उन्हीं सोर्सेस को, रूट को अगर मैं परेशानी में डाल दूं, तो अब इनके अंगों में कौन सी पावर बचेगी? आप मुझे जवाब दीजिए, है ना। तो इस तरह से हम उनके
परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इन सारे शक्तियों को तमाशा बना दिया है क्रूस के बलिदान के द्वारा, और हमको वो अधिकार दिया है, तुम बोलो अभी सूख जा समंदर, यीशु मसीह के नाम में वो सूख जाएगा। महानद तू रेगिस्तान बन जाए, यीशु मसीह के नाम में वो रेगिस्तान बन जाएगा। ये क्या है? ये सारे पावर्स के ठिकाने हैं जहाँ से लोग आपके ऊपर चढ़ाई करते हैं। आमीन। तो अब परमेश्वर क्या कहता है कि मेरा विरोध तुम लोग नहीं कर रहे, मेरा विरोध ये पावर्स मनुष्य अपने अंगों में लाता है और फिर वो तुम्हारे विरोध में आ जाता है और मेरे काम को वो तुम्हारे द्वारा होने नहीं देता है। तो परमेश्वर कहता है मैं उनको अब उनके अंगों में बैठे हुए शक्तियों को ही खत्म करूंगा। और फिर वो खत्म होने के कारण वो क्या करने लगते हैं? प्रभु 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 प्रभु, यीशु 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 करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब वो पावर नहीं है। तो अब कौन सा पावर परमेश्वर उनको दे रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम का वो समाचार समझने लगते हैं, शुभ समाचार समझने लगते हैं। वो पावर परमेश्वर का उनके अंदर काम करना शुरू हो जाता है और फिर वो अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम विरोध नहीं कर रहे, हम पीछे नहीं हट रहे, लेकिन हमें दुष्टता के जगत में से लोगों के अंगों में बैठे हुए पावर्स के द्वारा हमको सता कर विरोध किया जाता है, पीछे हटाया जाता है। तो परमेश्वर उसका जवाब बनता है। ठीक है, मैंने मारने वालों की को अपनी पीठ और गाल, नोचने वालों की ओर अपने गाल किए, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। ये यीशु मसीह के बारे में है जो उसने क्रूस के ऊपर बलिदान में सहा। तो ये सब जो था ना, ये हमारे ऊपर शत्रु कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह तो बच निकला, पुनरुत्थान हो चुका उसका, अब हम उसके साथ पुनरुत्थित हुए हैं। अब वो हमारे शरीरों को, अब यीशु मसीह का तो शरीर नहीं है हाथ में, हमारा ही शरीर उनको मिलता है, तो वो हमारे ऊपर इस प्रकार के नालिशे करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया। तो अब यीशु मसीह जब सह रहा था, उसने क्या बोला कि मैं संकोच नहीं करूंगा क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से आप और हमने भी करना है, हमारी सहायता परमेश्वर से आएगा, तो हमने संकोच नहीं करना है ऐसे हालातों में से पार होते समय। ओके, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। तो ये सेम हमको करना है, क्योंकि क्रूस के ऊपर यीशु ने सहन किया। अब क्रूस के ऊपर दोबारा यीशु को लेकर नहीं जा सकता है शैतान, इसके लिए वो अभी हमारे शरीरों को इस प्रकार से छल करता है। ओके, हमारे प्राण को इस प्रकार से छल करता है। ठीक है, तो यीशु ने क्या किया, यही हमको करना है। वो जीत गया है तो हम भी जीतने ही वाले हैं। हमको भी परमेश्वर वही करने वाला है जो यीशु मसीह ने अपने लिए लिया है था। क्या किया उसने? संकोच नहीं किया। क्या किया उसने? भरोसा किया परमेश्वर सहायता है। क्या किया उसने? लज्जित होगा इसका डर नहीं रखा, क्योंकि उसको पता था कि वो लज्जित नहीं होगा। आमीन। 8 वचन से आगे, जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है, मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हो, मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, आप खुद के बारे में देखिए, आपके भी अंगों में दुष्टता के शक्तियां भिनी हुई पड़ी थी। ओके, जब आप प्रभु में नहीं थे। ठीक है, तो आपके बारे में परमेश्वर ने क्या किया? आपको प्रभु में लाया। प्रभु में लाने के लिए किसी को तो प्रार्थना करने के लिए उकसाया, किसी ने तो दम लगाकर प्रार्थना की है आपके लिए। ओके, पूरे बल के साथ, पैशनेट होकर, धुन के साथ आपके लिए प्रार्थना किए। ओके, पूरा जी जान लगा के आपके लिए प्रार्थना किए, और क्या आ गया? आप उद्धार में आ गए। अभी आपके अंगों की शक्तियां खत्म हो चुकी है जो दुष्टता की थी। अब आपके पास कौन सी शक्ति आ गई है? पवित्र आत्मा, जो आपको पवित्र रखने के लिए आप अपने आप को बारंबार पवित्रता में चलाते रहते हैं। आमीन। तो शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहते हैं, परमेश्वर को भावता हुआ जीवित बलिदान बनते हैं, है ना? तो चेंज हो गया ना सब कुछ। वैसा ही परमेश्वर कहता
कहता है जो पुराना है वो मतलब जो दुष्टता के जगत है वो सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। हालेलुया, खत्म हो जाएगा वो सब कुछ, और आप देखेंगे दुष्टता आपके विरोध ज्यादा लंबे समय तक चलती नहीं आ सकेगी। ओके, 10 वचन से आगे, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो। ओके, हम वो लोग नहीं है, ठीक है। परमेश्वर कहता है वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रखे। ओके, हमको पता है क्या ये लोगों के पावर्स के साथ कैसे फाइट करना है? नहीं पता। हमको पता है क्या ये लोगों के पावर्स का क्या सीक्रेट, कहाँ से कैसे क्या है, यहाँ पे इनको डिस्कनेक्ट करे, डिसमेंटल करे? नहीं पता। यानी ये ज्योति है, ठीक है, ये ज्योति है, ये रौनक है, ये शाइनिंग है। अगर पवित्र आत्मा ने सिखाया तो हमको पता चलता है, हम खुद उसके अंदर नहीं रहे, इसकी वजह से हमको ये पता नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है अगर ऐसा है कोई जो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा है क्योंकि उसके अंदर अंधेरा है, उसको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है कि ये अंधेरे ये लोगों से कैसे छुटकारा पाना है, तो फिर उसने क्या करना है? वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। रुक जाइए, आएगा मेरा खुदा, वो समय है उसका, वो समय है कि इसके हाथों से मैं छूटने का समय लग चुका है। मैं लज्जित नहीं होऊंगा और मुझे परमेश्वर हारने नहीं देगा, मुझे परमेश्वर शत्रु के हाथों में जाने नहीं देगा। आप ये तरह से आपका रवैया होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम है ना क्या करना है। आमीन। अब देखिए आगे क्या है। देखो, तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो। देखा, दुष्टता के जगत में इंसान क्या करता है? वो क्या करता है? आग जलाता है और अग्नि बाणों को कमर में बांधता है। अग्नि बाण क्या है? दुष्टता। ओके, दुष्ट आत्माएं, ठीक है, वो दुष्ट आत्माओं को कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं। ओके, उनको उकसाते हैं, उनको पसंद आए ऐसे काम करते हैं ताकि वो जो लोग चाहे वो कर पाए। ओके, उनको खुश रखते हैं। ओके, उनको धुन भर देते हैं और फिर उनको अपने कमर में ले लेते हैं। देखा होगा ना आपने कि कुछ लोग क्या क्या कैसे कैसे अपने कमर में, हाथों में, बाहों में ऐसे बांध के रखते हैं। ओके, और फिर वो पावर रहता है उनका, वो उनकी की हुई हरकतें होती है और फिर वो पावरफुल होकर हमारे विरोध में चढ़ कर आते हैं। क्या बोल रहा है परमेश्वर? तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्निबाणों के बीच आप ही चलो। आमीन। अब हमारे लिए परमेश्वर ने इतना आसान रखा है, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो। लेकिन दुष्टता के जगत के लोगों की पराक्रम जो है, पराक्रम नहीं, जो वो लोग करते हैं वो सारे कारनामे, उनके बारे में परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम उसमें चलो, कोई बात नहीं है। ओके, और क्या कह रहा है? तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी, तुम संताप में पड़े रहोगे। हालेलुया। यानी आप उनके बारे में अंत अभी देख चुके हैं। परमेश्वर कहता है वो पुराने कपड़े के समान हो जाएंगे। ओके, उनके सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी, उनके शरीर का कोई भी अवस्था उनको साथ नहीं देगा, कोई भी अवस्था में दम नहीं रहेगा। परमेश्वर कहता है अब आपने क्या करना है? भरोसा रखना है कि आपको तो नहीं पता है आप उनके विरोध क्या कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को पता है। अगर आपने परमेश्वर पे भरोसा रखा तो परमेश्वर उनका क्या करने जा रहा है। आमीन। तो अब ये बातें आपको ध्यान रखते हुए अपने रास्ते आराम से परमेश्वर पर टेक लेकर जो परमेश्वर का है वो सब कुछ एकदम बड़े धुन, आनंद और जय जयकार के ललकार मारते हुए आप करते जाओ। ओके, बिल्कुल आप डरिए मत, कोई भी अवस्था से मत डरिए, क्योंकि परमेश्वर को पता है उसने क्या करना है। आमीन। हम उसके बारे में और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं है। ओके, हवा ने देखा नहीं था मरने का मतलब क्या होता है।
तो हमने भी देखा नहीं है कि ये दुष्टता के जगत का एग्जैक्टली होता क्या है। क्या हमको टेंशन लेना है इन बातों का? इट्स ओके, पार होते जाओ। और जब जब आप जाग रहे हैं, परमेश्वर के लिए जीवता बलिदान बन जाओ। जब आपको सताया जाए, आप परमेश्वर के लिए जीवता बलिदान बने रहो। आमीन। हम 51 वचन पर अध्याय पढ़ेंगे पहले वचन से। यरूशलेम के लिए शांतिदायक वचन। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था, तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। देखा, हम बोलते हैं अब्राहम हमारा मूल पुरुष, हमारा विश्वास का पिता है, लेकिन अब्राहम की शुरुआत, अब्राहम को ही पहला स्टार्ट में लेना है। स्टार्टिंग में स्टार्टर जो होता है, वैसा ही परमेश्वर ने डिसाइड किया। नूह को, अब्राहम को, आदम को, ऐसा परमेश्वर स्टार्टर बनाने के लिए किसी को चुन लिया, वो था अब्राहम। तो हमको भी परमेश्वर ने चुन लिया है, तो हमारे नाम के साथ हमको चुन लिया है। आमीन। तो हम खुद मसीह में नहीं आए, हमको परमेश्वर लेकर आया है। आमीन। परमेश्वर ने हमको लेकर आया है। इस सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता है, कोई बदल नहीं सकता है। तुम जितना चाहो जोर लगा लो कि धर्म परिवर्तन ये वो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई किसी के ऊपर दम नहीं लगा सकता है ये बात का, क्योंकि खुद परमेश्वर अब्राहम को परमेश्वर की ओर लेकर आया। खुद परमेश्वर कह रहा है, वैसा ही परमेश्वर लोगों को परमेश्वर की ओर लेकर आते हैं। हम नहीं लाते हैं, हमारे पास कोई ताकत ही नहीं है कि हमारा कोई माने। आमीन। हमारे घर के लोग हमारी नहीं मानते हैं, बाहर के क्या मानेंगे? आमीन। ये परमेश्वर है, उनको बोलता है चलो, ये आवाज़ के पीछे चलो, और फिर वो लोग हमारे पीछे पीछे आने लगते हैं। और आप लोग हमको देखते हैं, आपको लगता है कि हम उनको हमारे पीछे ला रहे। हमारे पास क्या ताकत है, क्या दम है, क्या हैसियत है कि हम उनको हमारे पीछे लेकर आए? आमीन। हमारे पास कुछ नहीं है, ये परमेश्वर है, उनको कह रहा है हमारे पीछे पीछे चलो, तो वो आ जाते हैं। आमीन। और वो परमेश्वर के रास्ते पकड़ लेते हैं, ठीक है, और उनका परिवर्तन हो जाता है। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं रहता है, वो परिवर्तन परमेश्वर करता है, और परमेश्वर के लिए वो हमारे पीछे पीछे चले आते हैं। आमीन। आगे देखिए 2 वचन से आगे क्या है। उसने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। अपनी मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था, तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहोवा ने सियोन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वो कैसा था अब्राहम? लोगों के बीच में था, परिवार के बीच में था, जनरेशन के बीच में था? कहीं नहीं। जब वह अकेला था, हालेलुया। ओके, कोई भी इंसान आपके पीछे यीशु 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 करते आ रहा होगा ना, तो उसका वो शुरुआत कहाँ से हो गया पता है? जब वह अकेला था। हालेलुया। ओके, कोई भी अगर आपके कलसिया में आपके पीछे पीछे यीशु 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 करता हुआ आता है ना, तो वो कहाँ से शुरू हो गया? जब वह अकेला था। हालेलुया। कोई उसको बोलने के लिए नहीं था वहाँ पर, कोई उसको सुनाने के लिए नहीं था, सब कुछ में वो सिर्फ अकेला था। तब उसमें ये बात आ गई। ओके, तब उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी, तब उसके पीछे पीछे हो लिया, तब उसकी आशीषें उसको मिली, तब उसकी बुलाहट में वो चलने लगा। आमीन। तो यहाँ पे कोई इंसान की कोई नाम नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। वो जब अकेला था, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया है। आमीन। और बढ़ा दिया। यहोवा ने सियोन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को आदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हालेलुया। तो हमारे कारण जब अकेला कोई है,
तभी परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है और बोलता है हाँ जाओ, वो सिखा रहे ना वो सुनो, हाँ जाओ, वो प्रार्थना कर रहे हैं ना उसको एक्सेप्ट करो, हाँ जाओ, वो आराधना कर रहे हैं ना उसके अंदर शामिल हो जाओ। ये सब कहाँ से शुरू हो गया? जहाँ वो इंसान अकेला में था, तब वहाँ से शुरू हो गया और लोगों को दिखाई देने लगा, अरे ये तो वचन के पीछे चलने लगे हैं, अरे ये फैमिली तो परिवार यीशु में आ गया है, अरे ये फैमिली तो अभी कलीसिया ज्वाइन कर लिए है, अरे ये फैमिली तो बहुत आगे निकल जा रहे। ये शुरू कहाँ से हुआ? अकेला में एक एक जन को परिवार के अंदर परमेश्वर पकड़ता है, आमेन। और फिर बाहर के लोगों को सिर्फ देखने की चीजें देखने को मिलती है, लेकिन अकेला था जब वो इंसान, तब परमेश्वर का और उसका मुलाकात हुआ है। हालेलुया, वेरी वंडरफुल, वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ओके, तो इतना प्यारा है वो, इसके लिए उसका आनंद कभी टूटता नहीं है, इसके लिए उसको कोई हिला नहीं सकता है। वो चट्टान पर बंधा हुआ घर बन जाता है। ओके, वो डरता नहीं है कोई भी अवस्था से, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर मेरे अंदर से कुछ कर रहा है। ओके, परमेश्वर मेरे अंदर से कुछ दे रहा है, परमेश्वर मुझे कुछ चला रहा है, कोई बात नहीं है, इसके पार होना पड़ेगा मुझे, और मैं ये काम पूरा कर सकूंगा, मैं ये हो सकूंगा, मुझ में से ये हो जाएगा। क्योंकि अकेले में अगर परमेश्वर आपकी मुलाकात लिया है तो अकेले के ही अंदर से वो आपके कामों को भी पूरा करता हुआ जाएगा। आमीन। आगे देखिए 4 वचन से आगे, हे मेरी प्रजा के लोगों मेरी ओर ध्यान धरो, हे मेरे लोगों कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों को की ज्योति होने के लिए, देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। आमीन। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है, मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे, परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत न होगा। हालेलुया। ये हम मंजिल में चल रहे माय फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, ये मंजिल में चल रहे हम मनुष्य नहीं रहे अब। ओके, हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के धर्म में स्थिर कर दिए गए लोग हैं और जो इस पृथ्वी के ऊपर सदा काल के लिए ठहरने के लिए है। हम कभी भी खत्म होने वाले लोग नहीं हैं। 7 वचन से आगे क्या है? हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। ठीक है, तो परमेश्वर किसी को नहीं कह रहा है, परमेश्वर उनको कह रहा है जिनके अंदर अकेले में था वो इंसान, तभी मुलाकात कर लिया। अब उनको कह रहा है तुम कान लगाकर मेरी सुनो, मनुष्यों के नाम धराई से मत डरो और उनकी निंदा करने से विस्मित ना हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। आमीन। हे यहोवा की भुजा जाग, जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया था, जिसने अजगर को छेदा? क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और उसकी गहराई में अपने छुड़ाए हुओं के लिए पार जाने का मार्ग निकाला था? हालेलुया। पार जाने का यानी आप परिस्थितियों के पार जाने के रास्ते मौजूद है। आमीन। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। हालेलुया। इतना प्यारा हमारा भविष्य है। खत्म करो चिंताओं को। ओके, खत्म कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो। चिंताओं के ऊपर अपने लेसन्स मत लिखो। ठीक है, अपनी चिंताओं के ऊपर अपने सीखने की बातें मत निकालो।
ठीक है, आप चिंताओं के आधार से कुछ मत सोचिए। आप ये सोचिए कि परमेश्वर क्या चाहता है और परमेश्वर ने क्या दिया है और परमेश्वर क्या कर रहा है। कब? अकेले में जब आप हो तब। हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे। अब अकेले में हो आप तब ऐसे बोलेंगे तो आप अगर घर में है, भीड़ भाड़ में है, बहुत जगह में आप ऐसे है कि आप अकेले नहीं हो सकते, ऐसे वाली बात नहीं। आपके आत्मा की एक जगह है जिसमें एकांतपन है, अकेलापन है। ओके, अकेलापन है। आप कितना भी बिजी पर्सन रहे, लेकिन हर मनुष्य के अंदर एक जगह है आत्मा के अंदर, अकेला जगह है। ओके, वो अकेला के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। आमीन। तो लोगों के बीच में रहना, क्राउड, भीड़ भाड़ के बीच में रहना, इसमें अकेला रहना ऐसा नहीं। आपके आत्मा के अंदर एक जगह का नाम है अकेला। आमीन। वो जगह के बारे में परमेश्वर कह रहा है। हम आगे पढ़ेंगे 12 वचन। मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है? और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है। परंतु द्रोही को जलजलाहट कहाँ रही? बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। वह गड्ढे में न मरेगा और न उसे रोटी की कमी होगी। जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं, तुम मेरी प्रजा हो। हालेलुया। इस अकेला जब जगह के अंदर आप परमेश्वर के साथ मुलाकात कर लेते हो, आपके जैसा रोमांटिक इंसान और कोई नहीं होगा। आपके जैसा रोमांटिक इंसान और कोई नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि ये एक संगम है, ये एक रिश्ता है जो इतना भरपूर रोमांटिक बना देता है इंसान को कि इंसान असलियत में कैसा रोमांटिक है पता चलने लगता है। आमीन। इतना प्यारा वो अवसर परमेश्वर का हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। हम परमेश्वर के संगति में एक मन हो जाते हैं। आमीन। आप नहीं सोच सकते हैं जो इंसान ऐसे अकेले के अवस्था के अंदर परमेश्वर को प्राप्त किया होगा, उसके सामने हीरा भी फीका पड़ जाएगा। आमीन। इतना ज़्यादा प्रेशियस बन जाता है वो इंसान। आमीन। हम पढ़ेंगे आगे। यरूशलेम के दुखों का अंत। एक मिनट, मैं 16 वचन फिर पढ़ूंगी। मैंने 15 वचन फिर पढ़ूंगी। जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। देखिए, जब तक आपका वो अकेला एरिया ऑफ लाइफ का नाम है, जो अकेला स्पिरिट के अंदर एक जगह है आपके अंदर, ओके, मनुष्यों के अंदर जो जिसका नाम है अकेला, ओके। अगर उस जगह में परमेश्वर ने प्रवेश किया, परमेश्वर के आत्मा ने अगर मुलाकात किया, तब आपको ये वचन समझ में आते हैं। अगर वो नहीं प्रवेश किया तो आपको ये वचन समझ में नहीं आता है, आपके भरोसे में वो उतरता नहीं है। ठीक है।
देखिए क्या लिखा है, जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूँ तुम मेरी प्रजा हो। हालेलुया। यरूशलेम के दुखों का अंत। हे यरूशलेम, जाग जाग उठ, खड़ी हो जा। तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मद पूरा पूरा ही पी लिया है। जितने लड़कों ने उससे जन्म लिया, उनमें से कोई न रहा जो उसकी अगुवाई करके ले चले, और जितने लड़के उसने पाले पोसे, उनमें से कोई न रहा जो उसके हाथ को थाम ले। ये दो विपत्तियां तुझ पर आ पड़ी है, कौन तेरे संग विलाप करेगा? उजाड़ और विनाश और महंगी और तलवार आ पड़ी है, कौन तुझे शांति देगा? तेरे लड़के मूर्छित होकर हर एक सड़क के सिरे पर महाजाल में फंसे हुए हरिन के समान पड़े हैं। यहोवा की जलजलाहट और तेरे परमेश्वर की धमकी के कारण वे अचेत पड़े हैं। इस कारण हे दुखियारी, सुन, तू मतवाली तो है, परंतु दाख मधु पीकर नहीं। तेरा प्रभु यहोवा, जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वह यूं कहता है, सुन, मैं लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे को, अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूँ। ये जब परमेश्वर हमारे अकेला वाला जगह के अंदर हमारे साथ मुलाकात करता है, तब हमारा जीवन हमारे हाथों से छूट जाता है। हालेलुया। वचन कहता है, तूने पूरे जगत भर का सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने प्राण को खो दिया, तो तूने क्या प्राप्त किया? आमीन। तो इस प्रकार से हम जगत को जो प्राप्त करते हुए जा रहे, हम उसे खो देते हैं। आमीन। वचन कहता है, अगर किसी को ये पता चले कि उस जमीन में बड़ा धन छुपा हुआ है, ठीक है, तो वो अपनी सारी संपत्ति बेच के उस जमीन को खरीद लेता है। कर्जदार होकर भी वो जमीन को खरीद लेता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसको पता चला कि उसके अंदर खजाना है। आमीन। तो उस तरह का जीवन मसीही हो जाता है, जब अकेला वाला नाम जो जगह का है, जो हमारे आत्मा में है, उस जगह में जब पवित्र आत्मा का काम शुरू हो जाता है, मुलाकात होना शुरू हो जाता है, तब हम दुनिया भूल जाने लगते हैं। तब हमको कोई ब्यूटी पार्लर याद नहीं आता है, तब हमको कोई फैशन दिखाई नहीं देता है, तब हमको कोई मेकअप दिखाई नहीं देता है, तब हमको कोई भी प्रकार का कैसा भी बर्ताव हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। हम जो कुछ भी हो जाते हैं, कोई धन कोई संपत्ति नहीं बनाता है हमको, कोई प्रकार के रिश्ते नहीं बनाते हैं हमको, कोई प्रकार के किसी भी बात के द्वारा हम नहीं बनते हैं। हम केवल उसी के कारण बनते हैं जो अकेला हमारे अंदर का जगह है, उसके अंदर जो प्रवेश किया पवित्र आत्मा ने, वही के कारण हम अब ऐसे दिखने लगे हैं। आमीन। वही के अंदर से हमारे गुण बनने लगते हैं, वही के अंदर से हमारा जीवन बनने लगता है, वही के अंदर से हमारे स्वभाव बनने लगते हैं, हमारा उठना बैठना चलना फिरना उधर ही से निकल आता है, जो जगह का नाम है अकेला। आमीन। इसके लिए हम किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम किसी के साथ कोई भी बैर भावना के साथ दुष्टता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अकेला जगह हमारा कैप्टिवेट हो चुका है, कब्जा हो चुका है परमेश्वर के आत्मा के साथ। आमीन। हम परमेश्वर के आत्मा के साथ एक मन हो चुके हैं, वो जैसा है वैसा हम है। ओके, वो प्रभु यीशु की सूरत है, हम उसी के अंदर से हमारे जीवन में यीशु मसीह के सूरत को प्रकट करते हैं, चेहरे को प्रकट करते हैं। वो उजियाला है, हम यीशु मसीह के उजियाले को वहीं के अंदर से हमारे अंदर से बहाते हैं, प्रकट करते हैं, दिखाई देता है लोगों को। आमीन। तो हमारा सब कुछ स्थिर क्यों है, डगमगाता क्यों नहीं है? उस अकेला जगह का
क्या कहते हैं उसको, मुलाकात परमेश्वर से हो चुका है। आप श्रेष्ठ गीत अगर पढ़ेंगे, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन को पढ़ेंगे, तो आप उसमें देखेंगे ये अकेला जो जगह है, इसमें जब परमेश्वर का आत्मा प्रवेश कर लेता है तब क्या हो जाता है। वहाँ पर आपको इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसको कहते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप। ओके, उसी एरिया में अभी तक परमेश्वर का आत्मा अगर नहीं है तो वो इंसान मारा भटकता रहता है, वो धन के पीछे जाता है, वो शारीरिक संबंध के पीछे जाता है, वो दोस्त बनाने के पीछे जाता है, वो दोस्तियां निभाने में जाता है, और बस लोगों के पीछे पीछे भागता दुनिया में भागता ही रहता है। लेकिन फिर भी आखिर में जाके उसको पता चलता है कुछ प्राप्त तो हो नहीं रहा है, कुछ प्राप्त तो हो नहीं रहा है। आमेन। इस तरह से फिर लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको कुछ प्राप्त नहीं होता है। सब पूरा तन मन धन उंडेल जाते हैं वो सब कुछ में, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होता है। हालेलुया। वो एरिया ऑफ लाइफ क्यों प्राप्त नहीं होता है? क्योंकि वो जिस जगह में से उनको प्राप्त होना चाहिए वो अभी तक परमेश्वर के आत्मा ने भरा नहीं है। वो है अकेला। आमेन। वो अकेला जो जगह आत्मा के अंदर है, उस जगह में परमेश्वर के आत्मा के अलावा कोई नहीं आ सकता है, कोई नहीं। वो लॉक हो चुका है। वो किसके साथ प्रोटेक्ट कर दिया है पता है आपको? वो आप अदन बगीचा है, वो अदन बगीचा है, और वो आपका जो स्वर्गदूत करूब है उसके द्वारा वो प्रोटेक्ट किया गया है। उसके अंदर कोई नहीं जा सकता है। ओके, आग की तलवार आगे पीछे घूम रही है, कोई उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। कोई इंसान आपको तसल्ली नहीं दे सकता है, कोई दुनिया की शक्ति आपको तसल्ली नहीं दे सकती, कुछ नहीं, सब कुछ उसके बाहर ही रहेगा, उसके अंदर कोई जा नहीं सकता है। सिर्फ परमेश्वर का आत्मा जा सकता है। आमेन। वो प्रोटेक्टेड एरिया है हमारे जीवन का। इसकी वजह से मनुष्य अपने आप को कभी नहीं समझ पाया है। आज तक दुनिया भर के अंदर लोग इतने कुछ नामचीन हो चुके हैं, लेकिन अपने आप को समझ नहीं पाए, क्योंकि वो लॉक्ड एरिया है जिसके अंदर उनकी असली पहचान है। और वो लॉक्ड एरिया केवल और ही केवल परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर प्रवेश करता है और कोई नहीं जा सकता है। आमेन। इतना खतरनाक प्रोटेक्शन में है वो एरिया, फिर आप अपने आप को क्या समझेंगे? आमेन। आप अपने आप को समझे ही नहीं है जब तक वो एरिया पवित्र आत्मा कब्जा नहीं कर लेता है, जिसका नाम है अकेला। आमेन। कब्जा यानी उसके अंदर रहने के लिए आना है पवित्र आत्मा ने। परमेश्वर ने बोला है ना उत्पत्ति के 6 अध्याय के 3 वचन में कि मेरा आत्मा सदा मनुष्य के साथ विवाद करता नहीं रहेगा। ओके, वो आपको समझाता है, सिखाता है, बोलता है सब कुछ, लेकिन जब तक परमेश्वर का आत्मा उस अकेले जगह के अंदर आके रहने ना लगे, तो परमेश्वर ने ये पहले ही देख लिया कि अरे मैं इस अकेले जगह को जो बना के रखा है, अगर मैं अभी उनको पवित्र आत्मा दे दूं तो ये तो उसकी मानेंगे नहीं। ये तो सिर्फ शरीर के ही पीछे दौड़े जा रहे, इनको तो शरीर का ही सब कुछ पसंद है, तो रहने दीजिए, इसका मैं काम बाद में शुरू करूँगा। और वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के वक्त में शरीर मार डाला गया, कुचल दिया गया, मनुष्य का सा रूप नहीं रहा, ऐसी अवस्था में नर्क के अधीन चला गया। और फिर परमेश्वर ने कहा अब शरीर के पीछे मनुष्य जाना खत्म हो गया। ओके, अब परमेश्वर के पीछे मनुष्य आने का रास्ता मैं दे देता हूँ। अब परमेश्वर ने उस अकेले जगह के अंदर अब परमेश्वर का आत्मा रखना शुरू कर दिया। आमेन। जिसके अंदर वो रखना चाहेगा उसके अंदर ही वो रखता है, सबके साथ नहीं होता है ये। परमेश्वर जिसके अंदर वो आत्मा रखना चाहता है उसके अंदर आत्मा आने के लिए लोगों को वो प्रार्थना करने के लिए लगाता है, लोगों को वो अलग अलग रास्ते चलाता है। इस इंसान के ऊपर प्रार्थना करो, इस इंसान को ब्लेस करो, इस इंसान के ऊपर दया करो, इस इंसान के लिए भलाई करो, इस इंसान के लिए लगातार सोचते रहो, इस इंसान के लिए पैशनेट बन जाओ। ये परमेश्वर के लोगों के ऊपर वो जिम्मेदारियां लगा देता है। ओके, जो पहले परमेश्वर के उस
अकेले जगह का जो आत्मा में अकेला जगह है, परमेश्वर के आत्मा से जो भर चुके लोग हैं, वहाँ पे अब ये काम शुरू हो जाता है कि लोग एक दूसरे और दूसरे जो अन्य जातियों में है, जो अभी तक बचाए नहीं गए हैं, उनके लिए वो पैशनेट हो जाते हैं। ओके, धुन से भर जाते हैं कि वो प्रभु में दिखाई दे। और हम प्रार्थना करते हैं लगातार लगातार लगातार, फिर ये कौन कर रहा है? अरे परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है। आमेन। ओके, यहाँ कोई इंसान आपसे कुछ नहीं ले रहा है, ना कुछ दे पाता है। उनके पास कोई हैसियत औकात ही नहीं है इंसानों के पास कि वो इंसान के लिए कुछ कर पाए। ऐसी औकात ही नहीं है। इतनी जलील भाषा में मैं बोल रही हूँ, औकात ही नहीं है इंसान के पास कि वो इंसान के लिए कुछ कर पाए। आमेन। जो इंसान मसीह में है, उसके आत्मा में एक अकेला नाम का जगह है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर ने डाल दिया है, रहने के लिए दिया है। वहाँ से वो मनुष्यों को चलाता है और फिर वो मनुष्य आप लोगों के लिए कुछ करता है। या तो वो प्रार्थना करेगा, या तो वो आराधना करेगा, या तो आपके संगति में रहेगा, या तो वो आपसे प्रेम करेगा, या तो वो आपके लिए पैशनेट रहेगा, या तो वो आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। कुछ भी करेगा, वो आपको परमेश्वर कर रहा है, हम नहीं कर रहे, हम नहीं है वो। आपको परमेश्वर आपकी सेवा कर रहा है। आमेन। तो ये बात आपने समझ लेना है। आगे हम पढ़ेंगे 21 वचन से आगे। इस कारण है दुखियारी मन तो सुन तो मतवाली तो है, परंतु दाख मधु पी कर नहीं। तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकद्दमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वह यूं कहता है, सुन, मैं लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे को अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूँ। तुझे उसमें से फिर कभी पीना न पड़ेगा। अब हमारा वो पुराना जीवन खत्म हो गया। अब हम स्थिर हो गए, शांत हो गए, है ना। हमारा मन आनंद रहता है हमेशा। अब हमारे वो अकेला रहने वाला जगह जो है, जिसका नाम अकेला ये जगह है, अब वो पवित्र आत्मा से भर दिया गया है। आमेन। अब 23 वचन देखिए। और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा, जिन्होंने तुझसे कहा, लेट जा कि हम तुझ पर पांव रख कर आगे चले, और तूने औंधे मुंह गिरकर अपनी पीठ को भूमि और आगे चलने वालों के लिए सड़क बना दिया। हालेलुया। आप कभी भी देखो, अगर आपको पूछा जाए आज के दिन, ओके, क्या आपको ये चाहिए? अगर आपके उस अकेले जीवन में, जिसका नाम आपके जीवन में, जो आपके आत्मा में जो जगह है, अकेला जिस जगह का नाम है, अगर उस जगह में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, ओके, तो अगर आपको देखा जाएगा तो बारंबार आप देखिए अन्य जातियों के लोगों में पवित्र आत्मा उस अकेला जगह में नहीं है। आप देखेंगे बारंबार वो कोई ना कोई बात को और ऊंचाई में प्राप्त करना चाहते हैं। ओके, अगर वो दोस्ती बनाने में पसंद करते तो वो और एकदम महाभयंकर उनके पैशन धुन रहती है कि सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा ग्रुप, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रेंड्स उनके रहेंगे। ओके, अगर कोई बहुत पॉपुलैरिटी चाहता है तो वो इतनी दिन रात मेहनत करेगा, वो जो चाहे वो करेगा और वो पॉपुलैरिटी को हासिल करने के पीछे अपने रास्ते चलता जाएगा। अगर किसी को एम्बिशन है, वो पायलट बनना है, तो वो इतना जी जान लगाकर वो स्टडी करेगा कि वो पायलट बन के फिर उसके ऊपर प्रमोशन प्राप्त करने के पीछे जाएगा, फिर उसके ऊपर वो और कुछ करने के पीछे जाएगा। इतना वो निकल जाते हैं आगे, इतना ज़्यादा हो जाता है उनका। लेकिन इन सब के बीच में आपको क्या दिखाई देता है? वो ये दिखाई देता है कि ये पैशन उनके अंदर, ये सारा जोर उनके अंदर, ये सारी धुन उनके अंदर, ये क्या है? ये परमेश्वर का क्रोध है उनके ऊपर। हालेलुया। ये परमेश्वर का क्रोध है उनके ऊपर।
उनको लगता है वो उन्नति कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, उनको बहुत कुछ लगता है, बहुत कुछ। नबूकदनेस्सर को भी बहुत कुछ लग रहा था और उसने बोला देखा ये सब कुछ मैंने किया है। तो उनका बहुत कुछ होने के बाद में वो क्रेडिट किसको लेते हैं पता है? वो खुद के मेहनत को क्रेडिट लेते हैं। ओके, इसकी वजह से नबूकदनेस्सर इतना कुछ होने के बाद में जब खुद के ऊपर क्रेडिट लिया तो परमेश्वर ने उसको पशु समान बना दिया। वो घास चरता रहा और उसके गद्दी को वो बिल्कुल बेइज्जत अवस्था में जी रहा था। ओके, तो इसके लिए परमेश्वर कहता ऐसा प्याला मैं उनके हाथों में फेंक दूंगा कि वो उसके पीछे पीछे जाए, अपनी ज़िंदगी उस पर दांव लगा दे, अपने ज़िंदगियों को उसके पीछे पड़ा दे। वो पैसों के पीछे भागेंगे, वो पॉपुलैरिटी के पीछे भागेंगे, वो फेम के पीछे भागेंगे, वो रिश्तों के पीछे भागेंगे। ओके, वो इतना इज्जत के पीछे भागेंगे। ओ हमारी इज्जत नहीं जानी है, हमारी नाक नहीं कटवानी है, हमारे बच्चों ने ये नहीं करना है, वो नहीं, इतना परिश्रम करेंगे वो लोग। लेकिन वो क्या है? परमेश्वर ने उनको वो क्रोध का प्याला दिया है उनके हाथों में। ओके, उनकी बदसूरती है वो, उनका पैशन उनकी बदसूरती है। आमीन। क्योंकि उनका सारा पैशन पूरा होने के बाद वो श्रेय किसको लेने वाले हैं? वो खुद को लेने वाले हैं। इसके लिए उसके अंदर कोई खूबसूरती नहीं है। इसके लिए जब आप देखते हैं ना, क्या कर रहा है वो इंसान? अरे इंजीनियरिंग कर रहा है। क्या कर रहा है वो इंसान? अभी प्रमोशन की ट्राई कर रहे हैं। क्या कर रहा है वो इंसान? अभी वो नेक्स्ट लेवल में वो वहाँ पे अब्रॉड जा रहा है। ओके, अब क्या कर रहे हैं? अब वो अब्रॉड में से और कहीं जा रहा है। ओके, ये करने जा रहा है। आप देखेंगे क्या है? ये उनकी बदसूरती है। ओके, ये धुन कहाँ से है? ये धुन बताता है कि परमेश्वर उसे क्रोधित है। आमीन। इसके लिए आप वैसे मत कीजिए। ओके, आप वो देख के मत जाइए, आप वो फैशंस के पीछे मत जाइए, आप वो मेकअप्स के पीछे मत जाइए, आप अपने शरीर का एकदम बिल्कुल चकाचौंध जीवन जीने के पीछे, लग्जरियस लाइफ के पीछे, एकदम ग्लैमरस लाइफ के पीछे आप मत जाइए। ओके, क्योंकि ये कौन जा रहा है? जिसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, उसको वो प्याला दिया गया है कि वो उसके सारे धुन, उसकी ताकत है, उसका सारा जड़ मोट सब निकाल कर वो पूरी तरह से उसके ऊपर उंडेलता जाएगा। और वो परमेश्वर का क्रोध है। ओके, और वो क्रोध का हिस्सा जी रहे हैं। उनको लगता है उनको घमंड का हिस्सा मिला है, निश्चित घमंड का हिस्सा मिला है, लेकिन वो घमंड जिसको परमेश्वर गिरा देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मसीही लोग सावधान हो जाइए। ओके, आपको ऐसी बातें ललचाना नहीं चाहिए जो जग में चल रही है। और आज का रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में वही था ना, 12 अध्याय का 1 वचन और दूसरे वचन में क्या था? सदृश मत बनो इस जगत के, क्योंकि वो क्रोध के पीछे जा रहे हैं। हालेलुया। उनके हाथों में वो प्याला दे दिया है। आपको लगता है ओह क्या मेहनती है इंसान, वाह क्या मेहनती है, वाह क्या करोड़पति बन गया, वाह कितना, ओ माय गॉड आई सल्यूट। ऐसे हम करते हैं। कम ऑन, वो सल्यूट मारने वाली जगह नहीं, वो बेइज्जती की जगह है, उनकी बेइज्जती की जगह है। नबूकदनेस्सर मनुष्य का सा न रहते हुए जानवरों के समान बदल गया। उसके बाल रोए निकल आए, हाथों में नाखून बढ़ने लगे और वो जानवरों की तरह घास खा रहा था। इज्जतदार की जगह नहीं है ये, बेइज्जती की जगह है ये। घमंडियों का ये हालत होता है और लोग घमंड के चक्कर में आगे दौड़ते हैं। ओके, अगर किसी को पूछे तो कॉलर टाइट करके बताते हम फ्लैट में रहते हैं। ओके, कॉलर टाइट करके बताते हैं हाँ हम अब बस 2-3 फैक्ट्री लिए, चौथी फैक्ट्री लेने के लिए जा रहे हैं। ओके, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस बैंक बैलेंस में थोड़ा सा और इंटरेस्ट आ गया था ना, उसको लेके अब और एक शॉप खोल रहे हैं। ओके, तो आपको लगता है कि आप कॉलर टाइट की बात कर रहे हैं। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, वो आप श्राप लेके चल रहे हैं, आपके हाथ में आप श्राप का कटोरा लेके चल रहे हैं।
आमीन। परमेश्वर का क्रोध का कटोरा है वो, ओके। इसके लिए आप तृप्त नहीं होते हैं। आपको लगता है आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आप सीढ़ियां नहीं चढ़ रहे, आप सीढ़ियां उतर रहे हैं। हालेलुया। तो इसके लिए परमेश्वर का क्रोध का जीवन है जगत के अंदर, उसके बारे में मत सोचिए। इतना सोचिए आपको जस्ट एक जीवन परमेश्वर ने दिया है, उसको परमेश्वर का भावता हुआ जीवन आपको जीना है, और बाकी पैशंस आप मार डालो आपके अंदर से, खत्म करो। टाइम कंज्यूमिंग पैशंस को आप मार डालो अपने अंदर से, ओके। और परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जो चलता है वैसा ही आपको लाभदायी जीवन रहेगा, और उसी के अंदर आपका वो अकेला में जो परमेश्वर ने आपको कैच कर लिया है, वो जगह उसने अपनी ले ली है, वहाँ से अब आपको जो मिलता है उस दिशा में निश्चित जाइए। अगर वहाँ से आपको मिल रहा है, एक शॉप ले लो, डेफिनेटली ले लो। वहाँ से अगर मिल रहा है एक कार ले लो, आप ले लो, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ से जब आपको मालूम पड़ रहा है कि आपको उन्नति लेना है, वो परमेश्वर के महिमा के लिए होगा, ओके। उसका क्रेडिट आप खुद को नहीं लेंगे, आप बोलेंगे ये परमेश्वर के महिमा का काम है। हालेलुया। इस तरह से हमारा ऊंचा होना नम्रता से होता जाता है, ठीक है। लेकिन दुनिया के अंदर ऊंचा होना गिरने के रास्ते चलने के बराबर है, ओके। तो दुनिया, अन्य जाति जहां पर है वो रास्तों को आप प्रेम मत करो। अन्य जाति जिस लेवल में है उस लेवल की आप लालच मत रखो, क्योंकि वो गिरने का सीढ़ियां हैं, उतरने वाला सीढ़ियां है, चढ़ने वाले सीढ़ियां नहीं चढ़ रहे। वो चाहे वो कितना भी होशियार बन के कहीं पर भी पहुंच के आए हो, अगर यीशु उस अकेला का जगह में नहीं है, उनका वो पहुंचना गिरते हुए सीढ़ियों को ही वो चढ़ नीचे उतरते हुए आए हैं, ओके। उनके लिए ऊपर चढ़ान नहीं है, नीचे ही के और ज़्यादा नीचे जा रहे हैं वो। जितना आपको वो दुनिया के अंदर ऊंचे दिखाई देंगे, उतने ही वो नीचे निकल गए हैं, ख़त्म होने के रास्ते में चले गए हैं। वो क्रोध का प्याला है परमेश्वर का, वो लेके चल रहे हैं उनको। उसके पीछे परमेश्वर ने बोला है मैं पैशनेट बनाऊंगा उनको, उनके पीछे दौड़ने के लिए। आप देखेंगे कैसे कैसे परफ्यूम्स के पैशनेट है लोग, कैसे कैसे प्रकार के कपड़ों के पैशनेट है, कैसे कैसे हाव भाव के पैशनेट है, कैसे कैसे लोगों के पैशनेट है, कैसे कैसे बिजनेसेस के पैशनेट है, कैसे पैसे के पैशनेट है। ये क्या है? परमेश्वर के क्रोध का प्याला है। हालेलुया। लोगों को लग रहा है कि वो उन्नति कर रहे, खत्म करो बात को, ओके। वो उन्नति नहीं है, वो अपने आप में परमेश्वर के क्रोध के प्याला का जीवन जीते हुए जा रहे हैं, जो उतरती सीढ़ी है, चढ़ती सीढ़ी नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर कहता है घमंडियों को मैं गिरा दूंगा, तो वो निश्चित स्थान उनका कहाँ है? डेप्थ ऑफ द पिट, ओके। जो अधोलोक कहा जाता है, उसकी गहरी जगह जहाँ है, उतनी गहरी में उनकी सीढ़ी, वो जितना ऊंचा जाएंगे उतनी गहरी सीढ़ी के वो पैर नीचे 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 उतार कर लेकर आएंगे। समझ में आया? तो धोखा नहीं खाना है, ये जगत हमारे लिए नहीं है। इस जगत की कोई चकाचौंध, कोई बातचीत, कोई प्रकार के नकल हमारे नहीं होने चाहिए। हमारे अंदर जो अकेले में हमने प्राप्त किया हुआ यीशु मसीह का आत्मा है, वो हमें अगर कुछ कहता है तो निश्चित हमने उसे फॉलो करना है, निश्चित, ओके। उसमें कोई कसर नहीं रखना है, निश्चित फॉलो करना है और बिल्कुल फॉलो करना है। आमीन। क्योंकि आप उसका श्रेय किसको देंगे? आप उसका क्रेडिट किसको देंगे? परमेश्वर के महिमा को देंगे। परमेश्वर का महिमा हो, आमीन। तो आप उसका क्रेडिट नहीं लेंगे, आप परमेश्वर को उसकी महिमा देंगे। आमीन। इस प्रकार से परमेश्वर ये चीज़ों को हमें जाहिर कर दिया, पवित्र आत्मा से हमने मांगा, उसने हमें सारी भेद बातें बताई। इसके लिए हम परमेश्वर के आत्मा को धन्यवाद करते हैं। एंड आई लव यू आबा फादर गॉड, एंड आई लव यू सो मच जीसस क्राइस्ट। आई लव यू होली स्पिरिट, एंड आई थैंक यू होली स्पिरिट। हमारे उस अकेला नाम का जो जगह है उसके अंदर तूने प्रवेश किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर गॉड। हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में, हम तुझसे विनती करते हैं नासरी यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।
हम 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान देखेंगे, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। रिबांता शराबा खासियान जुल रहासा लाक तोल्ला रहसियान दुरो लाक 3 रबा अखासियान। 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, जॉन 5 चैप्टर 1 वर्स से 9 वर्स तक, 1 किंग्स 16th चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 1 वचन से 9 वचन, पहले राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय। अकेले में बैठकर, अब आपको समझ में आया अकेले में बैठकर बाइबल रीडिंग पढ़ने का मतलब क्या होता है? उस जगह के अंदर जिसका नाम अकेला है, हालेलुया, उसके अंदर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रह रहा है, हालेलुया। उसके साथ आप अपने शरीर को शांत कर देते हैं, अपने पैशंस को शांत कर देते हैं और उसके साथ मिल बैठते हैं, हालेलुया। अब आपको अकेले में बैठकर पर्सनल व्यक्तिगत समय में इन वचनों को पढ़ना है, अध्यायों को पढ़ना है। और परमेश्वर का आत्मा हमें इसलिए दिया है परमेश्वर कि हमने उसके सुनना है और उसके अनुसार हमारे जीवन को चलना है और अनुग्रह के आत्मा का निश्चित हमने लाभ उठाना है। हम 2 साल के अंत में देखेंगे परमेश्वर एक बहुत सुंदर बर्तन हमें प्राप्त करके उपयोग करेगा, हालेलुया। और ये होने के लिए हमने अनुग्रह के आत्मा को पाया है, निश्चित हमने परमेश्वर के अनुग्रह के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे, आमीन, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर, तुझसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा, हमें इन सारे वचनों के भेद सिखाने के लिए धन्यवाद। हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में और हमें तेरे ईश्वरीय डिवाइन ऑर्डरलीनेस में, रचना में उतार कर लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। और सारी महिमा तुझे देते हैं पिता, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं पिता। हम इसके अंदर कुछ नहीं, सब कुछ जो भी पिता हम आज है वो सिर्फ तेरी महिमा के लिए है। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमारी द्वारा तू महिमा प्राप्त करे, आमीन, आमीन, आमीन। नासरी यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन, आमीन।